RG, next one is interesting. Seeking advice on an open relationship lifestyle. Dear Junaid, I hope you're doing well. I'm writing this email from a throwaway account to keep my identity anonymous because what I'm about to share is very personal. I've always admired how practical and non-judgmental your advice is, and I feel you could help me gain some much-needed clarity. I've been married for 3 years. It was a love marriage, and we live outside Pakistan. From the beginning, my husband and I have been on the same page about some major life decisions. We both decided not to have kids and to keep our families at a distance. This has helped us live a life free from family pressure, which has been a blessing. One of the best things about our relationship has always been our ability to communicate openly. We've never shied away from difficult conversations. Recently, we both acknowledged that we are starting to lose interest in each other. There is no bitterness or blame. It is just something we both feel and have talked about honestly. Now, my husband has suggested me that we try turning our marriage into an open one. In the past, we had some conversations about exploring the idea of involving another person, but nothing ever came out of it. This time, his suggestion feels much more serious. It's not a temporary idea. He wants to explore it as a lifestyle. I'm open to the idea as well, and we are both aligned in considering it as a potential way to bring a new dynamic to a relationship. However, my biggest dilemma is this: what happens if it doesn't work out? If one or both of us struggles with it, or it leads to feelings or resentments or detachment, would we be able to return to the relationship we have now? Or would it fundamentally change things in a way we cannot undo? My husband is my soulmate. We are so aligned in our choices and values, whether it is food, travels, movies, or our shared decisions to live a life without kids or family obligations. We dream of a future filled with freedom and adventure. We talk about spending our final days on a cruise ship and scattering our ashes into the sea and open land. This vision of the future is so important to me, and I don't want to jeopardize it by making a decision that might create a divide we cannot bridge. I would really appreciate your perspective on whether relationships can recover from such decisions if they don't turn out as planned. Thank you for taking the time to read this. I look forward to hearing your thoughts. Warm regards. So ये एक खातून है जिन्होंने ज़ाहिर है एक अनोनिमस अकाउंट से मुझे ईमेल भेजी है, और ये और इनके हस्बैंड चाह रहे हैं कि इनकी रिलेशनशिप ओपन हो जाए। अच्छा, इसमें एक चीज़ भाई मैं खुदा के वास्ते बता दूं, जो कपल्स शादी से पहले एक साथ रहते हैं ना, उसको लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। लिव हाइफन इन, ताकि लिविंग इन एन अपार्टमेंट और वट जो भी। लिविंग रिलेशनशिप कोई नहीं चीज़ होती। ये इतने मैं पेजेस पे देखता हूँ पाकिस्तान में लिविंग रिलेशनशिप बढ़ती। अबे लिविंग क्या है? वो मुर्दे कौन साथ रहते हैं? मुर्दे कहाँ साथ रहते हैं? इंसान जिंदा ही साथ रहता है। तो लिविंग बींग्स ही रह रहे हैं, तो लिव इन रिलेशनशिप होता है। लिविंग रिलेशनशिप कोई चीज़ नहीं होती। और एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट का फ़र्क जानिए। और मैं जो सबसे ज़्यादा लोगों को जज करता हूँ, वो जो सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं लूज़ और लूज़ में, ठीक है ना। लूज़ टॉक अलग होता है और लूजिंग एंड गेनिंग अलग होता है, मगर लोग लूज़ को लूज़ और लूज़ को लूज़ लिखते हैं। सो यस, एनीवे, सो ये जो है ओपन रिलेशनशिप की तरफ जाना चाह रहे हैं। ये कपल जो है, इनके बच्चे नहीं हैं, और दे हैड डिसाइडेड फ्रॉम द स्टार्ट दे डिडंट वांट इट। और फैमिली से और फैमिली ड्रामा से भी दूर रहते हैं। तो जाहिर है जब व्हेन यू हैव नथिंग बट ईच अदर, तो फिर वो एक पॉइंट के बाद वो चीज़ें बोरिंग ही लगने लगती हैं, जो कि उनको लगा कि इनकी अब ज़िंदगी में वो स्पार्क नहीं रहा। और पहले भी काफ़ी ओपन डिस्कशंस इनकी रही हैं, और इस बार हस्बैंड थोड़ा सा सीरियस लग रहे हैं कि इस बार अब हम कर ही लेते हैं ओपन रिलेशनशिप को। सो जो मैडम है, इनको बस खदशात है कि द फ्यूचर दैट शी हैज़ इन हर माइंड, कि हमें ज़ाहिर है अपनी आखिरी लम्हात किस तरह गुजारने, तो वो जेपरडाइज ना हो जाए। तो वो एक उनको कंसर्न है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये इससे मज़ीद डिटैचमेंट हो जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम नॉट गोइंग टू एंडोर्स एनीथिंग, बिकॉज हर इंसान की अपनी अपनी चॉइसेस हैं, अपना अपना उनका तरीक़ाकार है ज़िंदगी जीने का। ना मैं किसी को रोक सकता हूँ, ना मैं किसी को किसी चीज़ पे माइल कर सकता हूँ, राइट। सो दैट इज़ आउट ऑफ द वे। सो मैं कोई चीज़ एंडोर्स नहीं कर रहा। हाँ, अब इसमें ये है कि मैं आपको एडवाइस वो कर सकता हूँ कि हाउ यू कैन मेक योर कम्युनिकेशन बेटर। अब देखो, इसमें मुझे जो एक चीज़ लग रही है ना, वो ऑब्वियसली एक खला तो है आपकी ज़िंदगी में। अगेन इट्स अ पर्सनल चॉइस, लोगों की होती हैं, वो नहीं चाहते बच्चे हों, लेकिन ऑब्वियसली इट एड्स अ लॉट ऑफ मीनिंग टू योर लाइफ, एंड इट एड्स अ लॉट ऑफ फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स इन योर लाइफ, राइट। फिर आप उस बच्चे के अराउंड जीना सीखते हैं।
आप उसके अराउंड प्लानिंग करना सीखते हैं, एंड देन फिर ऑब्वियसली आपके सामने एक गोल होता है कि यार मुझे ये इंसान इस दुनिया में आया है मेरी वजह से, अब मैंने इसकी नैया पार लगानी है, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तो मैंने मेक श्योर करना है कि ये अलाइव एंड वेल रहे, राइट? सो एक कॉमन गोल भी आ जाता है ज़िंदगी में, एंड देन यू हैव सम सॉर्ट ऑफ गुड डिस्ट्रैक्शन और बैड लेटर ऑन ज़िंदगी में, डिपेंडिंग ऑन हाउ द चाइल्ड टर्न्स आउट टू बी। तो वो एक अलग चीज़ है। दूसरा फिर आपका जो है, चूँकि फैमिली से भी बहुत डिस्कनेक्ट है, सो फिर जो रहा सहा वो आप एक दूसरे के लिए ही रहे, एंड इट्स वेरी वेरी नेचुरल कि वो फिर जब आपके पास कोई और नहीं और आप दोनों ही होते हैं तो फिर वो एक स्पार्क नेचुरली आगे पीछे हो जाता है, विच इज़ वाई फिर इस तरह की सोच या ख्यालात आते हैं। इसमें मुझे एक वो याद आ रहा है, एक पॉडकास्ट का क्लिप था, थियो वॉन की पॉडकास्ट थी, उसको एक कॉल आई थी कि वो द वाइफ डिसाइडेड कि लेट्स हैव अ थ्रीसम। तो वो जो है उन्होंने वाइफ ने बोला कि ओके लेट्स ब्रिंग इन अ गर्ल। तो जब वो लड़की आई तो टर्न्स आउट माय वाइफ स्टार्टेड डेटिंग हर, और फिर बाद में फिर मैंने सजेस्ट किया कि एक और थ्रीसम करते हैं, इस बार मैं बंदा लाया तो मुझे बंदा समझ आ गया, सो नाउ आई एम डेटिंग द गाय। तो थियोन कहता है, यू आर ऑल गे मैन। सो यू वर जस्ट टू गेज हु वर इन अ मैरिज। खैर, इट वाज जस्ट अ जोक। तो अब इसमें ये कि मुझे इस चीज़ का ना बिल्कुल आई हैवंट रियली मेट पीपल जो ये इस तरह के मामलात रखते हैं। वैसे पाकिस्तान में दिस इज़ ऑल्सो वेरी मच आउट देयर, यू नो, ककर्लिंग होती है, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दैट, जिसमें लाइक यू नो द हस्बैंड वांट्स टू वॉच, so like the husband actually bring in other people, yeah, the wife selects, it can happen among group of friends, or it can, like, you know, there are actually couples on Tinder and Bumble. Dubai may be, like, when I used to use Tinder, I used to come across such profiles who were looking for a third partner or a third wheel in a situation. So it's becoming very, very common because I don't know, some people are adventurous that way, or some people are like to risk things because you know it can go either way. Some, like, one of my friend was asked by one of his, like, situationship, that there is a couple who's looking for a guy and I know those people really well, so would you want to, this was like some years ago. तो उसको मैंने यही बोला था कि यार व्हाट इफ यूर लाइक विद द लेडी और पीछे से साहब आ जाए ऊपर, चले जी सैंडविच बन गया आपका, क्या कर लोगे तुम? या वो फोन निकाल ले, वीडियो बना ले, बाद में ब्लैकमेल करे, लाइक सो मच दैट कैन हैपन, ब्रिंगिंग इन अ पर्सन फ्रॉम आउटसाइड। अच्छा, इसमें फिर काफ़ी सारे इंस्टाग्राम पे भी, यू नो, यू कम अक्रॉस सो मेनी रील्स वेयर a woman is like, oh, my husband brought me a birthday gift, so turns out it's like a black dude. I mean, you don't know who the guy is, what he's been gone through, STDs हैं नहीं हैं, क्या मसले हैं। चलो ये तो दूसरी चीज़ है ना। इमोशनल साइड पे अगर देखें तो what if your husband ends up liking someone, and I'm sure इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं जेलिसी तो आती होगी। So for example, if you are involved in that situation, if you're in a room where you're looking at your part, खैर आपकी तो सिचुएशन दूसरी है, ओपन रिलेशनशिप इज डिफरेंट, सो इट्स लाइक डेटिंग पीपल आउटसाइड एंड लाइक नॉट ब्रिंगिंग एनीवन होम, आई एम अज्यूमिंग। सो मैं जो सिचुएशन कह रहा हूँ तो खैर दूसरी है। बट इसमें भी अगर इसकी बात करें, लेट्स से, एंड यू नो यू आर गेटिंग ड्रेस्ड and you've told your husband you're going out on a date, right? Or someday your husband is like कि okay मैं Saturday को available नहीं हूँ because मुझे I have to take someone out or I have to go somewhere. I'm sure कहीं ना कहीं तो वो jealousy factor तो आता ही होगा ना, कहीं ना कहीं तो आता ही होगा। And of course it's going to, देखिए जो चीज़ ये चीज़ natural नहीं है, this is not natural, this is obviously man made। और अब ज़ाहिर है लोगों ने मसाले अपनी तरफ से डालने शुरू कर दिए अपनी ज़िंदगी में। नेचुरल तो वही हस्बैंड वाइफ, कहीं ना कहीं तो आपकी बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट किक इन करेगी, राइट? एंड हाउ डू यू डील विद दैट सिचुएशन? एंड ऑफ कोर्स अगर तो आप, योर हस्बैंड, लेट्स सपोज, or yourself for that matter, if you are in an open relationship, if you're seeing someone and you end up liking the guy, and you're like, you know, this guy is much more in tune to my you know emotions, और ये मुझे समझता भी है, and he listens to me, this and that वगैरह वगैरह। and of course आप एक तरफ, आपने ये नहीं लिखा आपकी शादी को साल कितने हो गए, हाँ नहीं ये नहीं लिखा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी शादी को 10 साल हो गए, आई एम श्योर योर हस्बैंड is not
adhering to your emotional needs उस तरह जिस तरह वो डेटिंग कोर्टशिप में होता है, राइट? उसमें आप ज़रा ज़्यादा सुन रहे होते हो क्योंकि आपको ज़ाहिर लेनी होती है। सॉरी फॉर द वर्ड, राइट? सो मर्द बहुत, हाँ अच्छा ये हुआ, फिर उसने क्या बोला, फिर बाद में लाइक हाँ ठीक है whatever. Anyway, so obviously when you're going to meet a man and like in hopes of taking things forward, तो obviously उसका तरीक़ाकार आपको डील करने का बहुत डिफरेंट होगा। एंड ऑफ कोर्स फिर आप 10 चीज़ें सोचोगे कि यार मेरा शौहर तो मुझसे इस तरह बात ही नहीं करता और दिस एंड दैट, एंड vice versa. Maybe your husband ends up finding someone who's like listening to your husband's hardships and like उनको फील हो कि यार शेट ये तो मुझे घर पे मिलता ही नहीं, एंड देन लाइक वो फिर एक लूप होल में आप चले जाएं, एंड देन लाइक आप उस चीज़ में इतना आगे निकल जाएं कि ठीक है यू आर रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स चॉइसेस एंड यू कमिंग बैक होम, बट यू बोथ नो आप दोनों कहाँ से आ रहे हो, एंड देन हाउ डू यू डील इन दैट सिचुएशन, हाउ डू यू स्लीप नेक्स्ट टू द सेम पर्सन नोइंग फुल वेल कि ये कहीं से आ रहा है या मैं खुद कहीं से आ रही हूँ। सो या इफ़ अगर इमोशंस रन इन कर जाएं तो वो फर्दर डिटैचमेंट हो जाएगी, और जो फर्दर डिटैचमेंट हो जाएगी तो फिर देन यू विल ओनली बी लिविंग just for the heck of it because you guys are married, and yeah, it can have detrimental effects. I'm sure there are सक्सेस स्टोरीज होंगी इस मामले में। बेहतर यही होगा आप किसी ऐसे फोरम पे जाएं, रेडिट वगैरह में, जहाँ पे इस तरह के लोग कर चुके हैं। यू कैन आस्क दैट क्वेश्चन देयर, जहाँ पे जो लोग इस चीज़ से ज़ाहिर है गुजरे हैं वो आपको बेहतर एडवाइस कर सकते हैं। मुझे तो यही लगता है कि एक चीज़ जो कि नेचुरल नहीं है वो फिर वो कभी भी आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगी। वो इट वुड बी फन ऑफ कोर्स अगर आप 10 साल बाद आपकी शादी में एक नया फ्लेवर ऐड हो रहा है, मल्टीपल फ्लेवर्स ऐड हो रहे हैं, हम शायद ठीक है एक्साइटिंग तो लगेगा, किसको बुरा लगेगा, मगर उसके कहीं ना कहीं तो डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स होंगे। सोशली तो खैर हैं ही वो, तो आप चलें इसको जितना भी गार्ड कर लें, साइकोलॉजिकली होंगे ऑफ कोर्स, इमोशनली होंगे, फिजिकली होंगे ऑफ कोर्स। you will come across partners who are actually like really really good intimacy wise, तो फिर आपको वही घर की दाल और मज़ीद पानी वाली दाल लगने लग जाएगी, देन व्हाट हैपेंस। सो ये चीज़ें बड़ी सेंसिटिव होती हैं, इनको बड़ा सोच समझ के ही नेविगेट करना चाहिए। अगेन आई एम नॉट जजिंग जो भी आपका है मामला, ठीक है, यू डू यू, मगर आई थिंक यू बोथ हैव ईच अदर एंड यू नीड टू support each other in the sense के not at the cost of risking your soulmate, because at the end of the day आपके पास आप दोनों ही हो, और ये एक बहुत बड़ा रास्ता है जिसमें आप डेफिनेटली खो सकते हो एक दूसरे को। और जो विजन आपके जहन में है कि क्रूज शिप पे जाना है और एशेस को बहाना है पैसिफिक ओशन में या किसी और स्पेसिफिक ओशन में, तो वो फिर दैट कैन बी थ्रोन अवे। सो इस चीज़ को बहुत देख समझ के देखभाल के ही कीजिए। बेहतर होगा कि यू नीड टू गेट इन टू मोर एक्टिविटीज़ टुगेदर, जिम शिम ज्वाइन कर लें एक साथ, ट्रैकिंग करें, ट्रैवल करें, ट्राई टू सीक अदर सॉर्ट्स ऑफ एडवेंचर्स टुगेदर, शायद देखें वहाँ से स्पार्क बिल्डअप हो जाए। Involving other people will eventually be bad news, if not right away, then eventually, in my humble opinion. So yeah, बाकी है कि इस तरह के forums available होते हैं, वहाँ पे आप इसका काफ़ी डेटा, एंड मेक श्योर इफ़ यू आर अ देसी कपल तो किसी देसी से ही मशवरा लीजिएगा, फिर वो कोई अंग्रेज़ तो आपको फिर अलग ही अपने कल्चर के हिसाब से और अपने माइंडसेट के हिसाब से देगा। सो वो ये भी बड़ा ज़रूरी है, विच इज़ वाई इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड टू हैव अ देसी थेरेपिस्ट, क्योंकि वो गोरा तो सीधा बोलेगा अच्छा ये नहीं हो रहा चलो भाई छोड़ दें आप, क्योंकि उनके यहाँ तो आसान होता है। हमारे यहाँ कल्चरल डिफरेंसेस ज़रा मुख्तलिफ होते हैं, हमारे प्रेशर्स डिफरेंट होते हैं। सो ट्राई गोइंग ऑन डेट्स, टेक हॉलीडेज टू द माउंटेन, गिफ्ट ईच अदर, नॉट द अदर पर्सन राइट अवे। सोचें इस पर बहुत ज़्यादा, ये इसके बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, एंड आई डोंट वांट यू टू लूज द ओनली पर्सन दैट यू बोथ हैव। दैट इज़ द प्राइम। वो होता है ना कि बच्चे हैं, पीछे फैमिली भी है, लाइक बाकी चीज़ें भी चल रही हैं, तो थोड़ा सा आप चाह रहे हैं कि जी बिरयानी में जवित्री डाल दें, वो एक अलग चीज़ है, बट लाइक राइट नाउ इन दिस सिचुएशन यू डोंट हैव एनी वन, तो फिर ये ना इनसे भी जाएं। सो या क्वाइट रिस्की, आई वोंट सजेस्ट, बाकी है कि इट्स योर कॉल।
थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।